Now, dear students, it is part third of the chapter. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes for naturally to the human heart than its opposite, even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits. I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness in a flame that can be hidden but never extinguished. In life, every man has to an obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil human society. Now I am telling you in Hindi. जैसा कि आपने देखा कि नेल्सन मंडेला ने कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ के नेम लिए, जैसे कि ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिजलस, द चीफ लुथेलस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुवोक्स of his time. They were really extraordinary men, and he also discussed that कि संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए भी देखा। मैंने कई लोगों को आक्रमण के दौरान अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए देखा। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता को प्रदर्शन करते हुए देखा। कहते हैं मैंने वो सब देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। और नेल्सन मंडेला ने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी, रंग भेद अथवा उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। लोग घृणा करना सीखते हैं क्योंकि वो घृणा कर सकते हैं और घृणा करना उन्हें सिखाया जाता है। उन्हें प्रेम करना भी तो सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम तो एक प्राकृतिक गुण है, प्राकृतिक खूबी है जो मानव के हार्ट में, मानव के दिल में बिल्कुल नफरत के विरुद्ध है और अपने आप उत्पन्न होती है। और जब भी कभी कहते हैं कि जेल के दौरान गंभीरतम समय में मेरे साथियों और मुझे जब भी कभी यातनाएं दी गई थी तो मुझे एक हमारे हेल्प करने वाले संत की याद आती थी जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। शायद अगर वो एक सेकंड के लिए भी मुझे कोई कहे कि मैं भूल जाऊं तो शायद मैं भूल नहीं सकता। और यही बात मुझे रिश्योर करती है या आश्वस्त करती है कि मानव में अच्छाई है और उस अच्छाई की ज्योत को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं। एक उत्तरदायित्व उसका फैमिली, अपने माता पिता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, दूसरा अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए। यही एक सभ्य समाज, मानवीय समाज है। स्टूडेंट्स प्लीज़ टर्न द पेज। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man
of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated in South Africa. A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in sever, attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night to read what I pleased, or being able to stay out at night, ready what I pleased, to go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Now I am going to explain this in Hindi. तो जैसा कि आपने देखा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लोगों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्ति एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करता था या पूर्ण करता था, उसे रोक दिया जाता था अपने कर्तव्यों को पूरा करने से। जैसे कि मेरा कर्तव्य एक बेटे, एक पुत्र, एक भाई और एक फादर और एक हस्बैंड का है। फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मेरी आज़ाद होने की कोई चाहत नहीं थी। मैं आज़ाद पैदा हुआ, हर तरह से आज़ाद, जो मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ादी, नदी की क्लियर धारा में तैरने के लिए पूर्णतः आज़ादी, खुले आसमान में भोजन करने की, पकाने की पूरी आज़ादी, और चौड़ी पीठ वाले बैलों की सवारी करने के लिए पूरी तरह से आज़ादी। नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा कि मैंने
अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना। मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये जाना कि मेरी लड़कपन की बॉयहुड की जो आज़ादी थी वो एकमात्र भ्रम सिद्ध हुई जब मैं बड़ा हुआ, और मेरी जो आज़ादी की भूख थी वह बढ़ती चली गई। पहले एक स्टूडेंट की तरह मैं फ्री होना चाहता था, उसके बाद एक गांव में रहने वाले बच्चे की तरह आज़ाद रहना चाहता था। रात को बाहर जाने की क्षणिक आज़ादी, इच्छानुसार पढ़ने की आज़ादी, बाद में जोहान्सबर्ग में जवान व्यक्ति के रूप में आज़ादी, फिर अपनी शक्तियों के अनुसार कमाई करने की आज़ादी और अपने परिवार को सामाजिक आज़ादी दिलाने के लिए मैं तड़फड़ाता था। और मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता था जो नियम अनुसार कभी भी किसी के लिए बाधा ना बने। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल परतंत्र था बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी पर ही प्रतिबंध नहीं था बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उस समय मैं अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूख बन गई। Thank you, students. Now watch part 4th.